deeply honored to have among us a true luminary, Dr. Pawan Sinha, fondly known as Guruji. A spiritual guide, philosopher, and an educationist, Guruji has dedicated his life to the holistic development of individuals and society. He is the visionary founder of the Pavan Chinta Dhara Ashram and the Youth Awakening Mission, where he tirelessly works towards nurturing the physical, mental, and spiritual well-being of youth. Guruji holds an MPhil in Defense and Development and a PhD in a Right to Education. A distinguished professor at Delhi University since 1997, his teachings extend beyond classrooms to inspire countless lives in and around India. His initiatives like the Rishi Kulshala bring the gift of education to the marginalized communities. Through Project UPSC, he empowers underprivileged aspirants to achieve their dream of becoming officers. A staunch proponent of the right to education and the Indian knowledge system, Guruji envisions a self-reliant and spiritually awakened Bharat. His emphasis on meditation, functional spirituality, and youth empowerment is paving the way for India that is both rooted in its cultural heritage and ready for a bright future. Let us please welcome Guruji with gratitude and open hearts. Salutation to Mama, my Guru, parents, and lot of respect to you. Thank you, Devinji, for my introduction, and you agreed to encourage her. Thank you so much. बच्चों मैं ये जानना चाहता हूँ कि are you comfortable in English or in Hindi? English. Some are saying Hindi. So let's speak English, right? I start with a story, and that's a real story. और ये जो कहानी है ये केवल उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं हम सब की ऐसी कहानी है। मेरे एक फ्रेंड थे, when I was in school, and we had a good relationship. He used to stammer. और वो गाना गाना चाहते थे, and it was his wish to speak on the dais. He also wanted to act because I was affiliated to some people who were doing theatre, and they also called me to play my roles. So he wanted this opportunity, he wanted to speak, but he used to stammer. For certain reasons, I'm not taking his name. कभी कभी बहुत सारी unusual बातचीत होती थी, जैसे सबकी लाइफ में हो जाता है, कोई डांट जाता है, कोई धक्का दे जाता है, कोई कुछ कह जाता है, और उसको बहुत तेज गुस्सा आता था, जैसे आप लोग भी एक्सप्रेस करते होंगे, आप भी सब, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता था, घर पे जाकर लड़ता था, हमसे शिकायत करता था, लेकिन वो अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। He was very good in his studies, particularly in science, and he was very much interested, though he hailed from a business family.
but his interest was in science. And there was a point of time we all thought that he'll clear the engineering examination. At that time there were very few engineering colleges and it was very prestigious to be in engineering college. So we used to think that he will go through. मैं तो कभी खैर भरा ही नहीं, my path was clear to me. लेकिन हम सोचते थे कि ये इंजीनियरिंग कर लेगा और हो सकता है फिर जॉब में जाए. But would you believe that he never took the examination? वो एग्जाम ही नहीं दिया कभी कि मैं फेल हो जाऊंगा. He did fill the form, but he couldn't muster that confidence that I'll take this examination and will clear it. His teachers, my teachers were very good. So they used to give personal attention to such students. और उन्होंने भी उसको बोला कि तुम एग्जामिनेशन क्यों नहीं देते हो, फेल हो जाओगे. लेकिन वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था उसके अंदर. तो वो गाना गाना चाहता था, कॉन्फिडेंस नहीं था. थिएटर करना चाहता था, कॉन्फिडेंस नहीं था. अपने इमोशंस को रिएक्ट करना चाहता था, कॉन्फिडेंस नहीं था. पढ़ना चाहता था, कॉन्फिडेंस नहीं था. लेकिन वो एक सुपर डुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट. आप में से बहुत सारे लोगों की ये कहानी होगी. मैं पूछ नहीं रहा हूं किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन होगी. और ये बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए कि इतनी सारी क्वालिटीज वर्च्यूज होने के बाद भी हम पिछड़ क्यों जाते हैं. ऐसा मैंने दुनिया में आज तक कोई, मेरी पब्लिक लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई वाज जस्ट 8 और मैंने इतनी लंबी पब्लिक लाइफ में आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, एक भी, जिसके अंदर स्पेसिफिक क्वालिटीज ना हो, स्पेसिफिक टैलेंट ना हो. मैंने अपना काम ही एक बना लिया, लोगों को ये बताना कि तुम्हारे अंदर जो नहीं है वो सब बेकार की बात है, तुम्हारे अंदर जो है वो काम की बात है. लेकिन उसको सामने कैसे लाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. और आजकल एजुकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में. टीचर्स हर एक पर अब ध्यान नहीं दे पाते. घर में बहुत सारा काम होता है, इसलिए पेरेंट्स भी आजकल वह पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते. बच्चों से बातचीत करने का जो एक ब्रिज होता था वो अब कहीं टूटने लगा. और ऐसे में तुम्हें खड़ा होना, और वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड ruthless competition is there. Nobody will take care of you. कोई आपकी चिंता नहीं करेगा. वो बिल्कुल ruthless competition जिसको बोलते हैं गला काट कंपटीशन, वहां कोई आपकी चिंता करने वाला नहीं है. आप चाहे आपका करियर ही खत्म क्यों नहीं हो जाए, वहां कोई भी व्यक्ति आपके लिए थोड़ा सा भी sympathy नहीं रखेगा. So you have to stand up your own. और आपको अपने अंदर वो फील लानी होगी कि आप अपने वर्च्यूज को पहचान सकें. हर एक व्यक्ति के अंदर वर्च्यूज होते हैं, पर थोड़े से लोगों के वर्च्यूज सामने आते हैं, ज्यादातर लोगों के वर्च्यूज दब जाते हैं. आप में से बहुत अच्छे क्रिकेटर्स होंगे, आप में से बहुत अच्छे सिंगर्स होंगे, आप में से बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट होंगे. थोड़े से लोग सामने आएंगे, बाकी नहीं आ पाएंगे. आप में से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एकदम दुरुस्त है,
लेकिन वो सामने नहीं आ पाता। क्यों सामने नहीं आता और कैसे सामने आए? पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स की प्रॉब्लम्स जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। अब हम क्या करें? प्रॉब्लम ये है, हमारी भी तो प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, हम कैसे उसको निपटाएं? पहली चीज, मैं बहुत नटशल में बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं जार्गन्स की और डिटेल थ्योरीज की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग इन 1 2 3 4 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, you are a superhuman being. This should be your confidence. आप हो, इसलिए कह रहा हूं। मैंने बताया ना कि इतने लंबे सालों में, लगभग 40 सालों में, मैंने ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं पाया जिसके अंदर कुछ खास ना हो। वो दिखा ना पाया, वो एक अलग बात है। एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स एंड लेडीज, उनको मौका नहीं मिला और रिवोल्ट वो कर नहीं सकी, लेकिन वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। मास्टरशिप ऑफ वन और द अदर वर्च्यू। तो सबसे पहली चीज, खुद को कमजोर मत आको। ईश्वरवास्य उपनिषद, स्वामी विवेकानंद जी इसको अक्सर कोट करते थे और वो कहते थे ईश्वर भीतर है। ईशावास्य उपनिषद, उपनिषद बड़े काम की चीज है। सब प्रैक्टिकल नॉलेज है भारतीय नॉलेज सिस्टम में। हम उसको उस तरीके से नहीं पढ़ते सुनते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉलेज बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि भगवान तुम्हारे भीतर है और यदि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हें भगवान पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। उसी ईश्वर ने तुमको बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि लक प्लेज नो रोल, बट लक्स रोल इज लिमिटेड। कर्म का भी अपना रोल है और श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्म सु कौशलम। अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि डरना नहीं है, इतना अच्छे से अपना कर्म करना है कि योग बन जाए। और ये योग, मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ, श्री कृष्ण वाले योग की बात कर रहा हूँ, हाथ पैर उठाने कुदाने वाले योग की बात नहीं कर रहा हूँ कि डिप्स लगा ली, ये आसन कर लिया, वो आसन कर लिया। ये योग नहीं है हमारे, प्रचलित हो गए, वो एक अलग बात है। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा अच्छा कर्म तुम्हें ईश्वर से जोड़ सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम और इसी का फायदा उठाना है। तो तुम्हारे भीतर तुम्हारा भगवान, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब, जो भी मानते हो वो बैठा हुआ है, बस तुम्हें उसे महसूस करना है और खुद को भूलकर उसे महसूस करो और अपने आईने में जाकर इस चीज को देखो, तब तुम्हें दिखाई देगा एक हाईली क्वालिफाइड वर्चुअस पर्सन। घमंड नहीं करना, कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि हेयर लाइन है घमंड में और आत्मविश्वास में। हेयर लाइन, तो जो कुछ भी हमें मिला है, मिला ईश्वर की वजह से है, लेकिन जो मिला है हम उसे उठा रहे हैं क्या? हम दबा देते हैं। क्यों? हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस डज प्ले द की रोल थ्रू आउट योर लाइफ। एक बॉस के सामने दो लोग जा रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहा है कि पता नहीं गड़बड़ ना हो गई हो, ये गड़बड़ ना हो गई हो, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट वो हो जाता है, बार बार जाता है फिर बाहर आ जाता है, अंदर जाता है फिर बाहर आ जाता है, एंड फाइनली ही ड्रॉप्स। वही दूसरा व्यक्ति जिसने वास्तव में कमियां छोड़ी हुई है अपने डॉक्यूमेंट्स में, वो धड़धड़ाता हुआ अंदर घुसता है, बॉस से भी कह देता है, these are the lacunas in my documentation,
But this I have done wonderfully, and kindly look at it. ये उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। गलतियां सबसे होती हैं, याद रखना बच्चों, गलतियां सबसे होती हैं। ऐसा जिंदगी में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती ना होती, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए जो वर्च्यूज है उसे सामने रखना है। तुम्हें दूसरों के सामने अपनी कमियां क्यों रखनी है, वर्च्यूज रखने। तो पॉइंट नंबर 2, शीशे में खड़े होकर देखो कि ये जो सामने व्यक्ति दिख रहा है शीशे में, हाईली वर्च्यूज एंड क्वालिफाइड पर्सन इज ही। कभी पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है। और मैंने एग्जाम्पल दिया ना, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास हैं। 20 साल के टेलीविजन की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास हैं। बच्चों के बीच में ही रहता हूँ, उन्हीं के साथ काम करता हूँ डेली। बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास हैं। ऐसी स्टोरीज कि एक बच्चा, एक मेरा स्टूडेंट, वो कॉलेज छोड़कर जा रहा था। मैं उसे पकड़ के लाया, मैंने कहा पे फी, लेकिन तुम पढ़ो। बोला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा पढ़ के तो देखो। और वो पढ़ा, और इतना अच्छा पढ़ा बच्चों की IAS, क्योंकि उसने खुद को पहचान लिया। उसके अंदर कौन है ये वो पहचान गया। बस जब तुम इतनी मेहनत करना शुरू करते हो तो धीरे 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 प्रभु भी तुम्हारी मदद करते हैं। तीसरी चीज जो याद रखनी है तुम्हें, लिखो जरूर। आई नो दैट इन डिजिटल एज you play with the mobile, or you type more than you write, but learn to write. लिखने से मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपका अंगूठे पर दबाव पड़ता है। अंगूठे वैसे भी दबाते रहने से ब्रेन शार्प होता है। इसलिए लिखो जरूर। और हफ्ते में एक बार ये लिखो कि मैंने क्या टारगेट सेट किए थे और क्या मैंने अचीव किया है। बड़ों को भी करना चाहिए। हम जो सोचते हैं क्या हम उसको अंजाम तक पहुंचा पाए? अगर नहीं तो कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है। परिस्थितियां वैसी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमारे भीतर भी है। कोविड के समय में जहां बहुत सारे लोग मर रहे थे, वहां कुछ लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे। तो बंद घरों के अंदर के लोग भी राइटर्स बन गए। टेलीविजन पे यूट्यूब चैनल बना लिया अपना। दे आर डूइंग वंडरफुल ऑन यूट्यूब चैनल। हर परिस्थिति में हम कुछ ना कुछ विशेष काम कर सकते हैं। करो तो सही, एक स्टेप उठाओ तो सही, और उलझो नहीं कहीं भी। खास तौर से आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन्स एंड रिलेशनशिप्स। ये दो चीजें ऐसी हैं जहां उलझ गए जवानी में बर्बाद, कुछ नहीं मिलता। और लास्ट जो मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दूंगा। थोड़ी देर आंख बंद करके अपने आप से बात करें। ये बहुत जरूरी है। सारी दुनिया से मिल लेते हैं, खुद से नहीं मिलते। और खुद के भीतर ही तो सारी दुनिया है। उससे भी मिलना है तो चाहे 10 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, आंख बंद करके, कमर को सीधी करके, बॉडी को ढीला करके, और सोचना शुरू करो। पहले अपने बारे में सोचना, भगवान जी के बारे में बाद में बात करते हैं।
भगवान जी के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने बारे में सोचो। आंख बंद करके बैठ जाओ, स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, पूजा का घर है वहां बैठ जाओ, पार्क में जाके बैठ जाओ और देखो, स्वॉट एनालिसिस करो, तुम्हारे अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं जो उन खूबियों को दबा रही है, और कैसे उन कमियों को दूर करें। इस वीक में हमने क्या किया उन कमियों को दूर करने के लिए। तो हर वीक खुद को टारगेट्स दो और उसको एनालाइज करो कि हमने क्या किया, हमने उन टारगेट्स को अचीव किए या नहीं किए, या फालतू बातों में हम अपना दिन वेस्ट करते रहे। दिन में 2 घंटे तो बहुत बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। अगर रोज वेस्ट करेंगे इधर उधर की बातों में और फिर कहेंगे काम नहीं बन रहे, तो ये तो बेकार की चीज है। डोंट वेस्ट योर टाइम एनीथिंग, यूज गैजेट्स एज पर द रिक्वायरमेंट, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। जब बहुत बड़े हो जाना तब करना एंटरटेनमेंट, अभी तो काम पर सोचो, काम पर थोड़ा सा दौड़ भाग करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो और अपने बारे में सोचो, आंख बंद करके सोचो, व्हाट यू डिसाइडेड टू डू एंड हाउ मच यू डिड, व्हाट प्रोफिशिएंसी you developed this week, how many questions you solved, what new you have cooked, और भी कुछ किया, क्या किया, अपने फैमिली के साथ कैसा इंटरेक्शन किया, कितनी बार गुस्सा आया, नहीं आया, क्योंकि गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब आप कमजोर हैं। गुस्सा ब्रेन को खराब करता चला जाता है और बहुत गुस्से वाले लोग जो होते हैं उनके हार्मोनल डिसबैलेंस होने शुरू होते हैं। कितनी बार ठाका मार के हंसे हम लोग, क्योंकि ठाका मार के हंसोगे तो आपके कोर्टिसोल या नेफ्रॉन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स जिन्हें कहते हैं, वो बेहतर स्थिति में निकलना शुरू होते हैं और आप बहुत सारी बीमारियों में फंस के भी बाहर आ जाते हो, बहुत सारी परेशानियों में फंस के भी बाहर आ जाते हो। एंड हैव फेथ, आपकी जो भी फेथ हो, आप अपनी फेथ में फेथ रखिए। मेरी बात कुछ समझ में आई? इतनी धीरे से सो रहे थे क्या? अब हमारे पास अभी 15 मिनट करीब है, तो आपके यदि कुछ क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आता होगा बता दूंगा, नहीं आएगा तो कहीं से स्टडी करके आपको बता दूंगा। नमस्ते गुरुजी। मुझे एक बात पूछनी है कि एक इंसान के जीवन में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, डेस्टिनी, कर्म तो हम करते ही हैं, लाइक व्हेन वी आर अटेंडिंग द सेशंस, वी वर टॉकिंग, वी फ्रेंड्स वी वर टॉकिंग कि हमको जो बनना था, जैसे आपने कहा कि प्रयास कहीं हमारे छूट गए हैं, तो उसमें ऐसा है कि आज जिस एज में हम हैं, तो हम पीछे जब जाके देखते हैं तो मुझे कुछ और चाहिए था और मैं कुछ और हूँ, एवरीबडी मे बी एग्री विथ मी। तो कर्म तो हम तब से करते चले आए हैं, है ना? तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, डेस्टिनी या उससे जुड़े हुए कर्म जो है वो? मैं अनुभव के आधार पर बताता हूँ। डेस्टिनी और कर्म को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूँ। 2 लोग नदी में बहे जाते हैं, ठीक है,
वो जीवन है, नदी जीवन है, उस जीवन में बहे चले जाते, परिस्थितियों में बहे चले जाते। वहीं एक व्यक्ति हाथ पैर मार कर किनारे आने की कोशिश कर रहा है, चोटें भी खा रहा है, और दूसरे व्यक्ति ने कि सब कुछ जीवन में डिस्टाइंड है करके अपने आप को छोड़ दिया। तो जो हाथ पैर मार रहा है, जो अपने भगवान को याद करते हुए किनारे आने की कोशिश कर रहा है, कुछ दूर ही जाकर सही, लेकिन उसको किनारा मिल जाए। लेकिन जिसने अपने आप को छोड़ दिया हालातों पर, उसको तो डेफिनेटली है कि डेस्टिनी जहां बहा के ले जाएगी वो ले जाएगी। तो दोनों का जो रोल है, रोल 50-50% है, और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने प्रखर तरीके से कर्म करें कि हमारा भाग्य भी हमारा साथ देने को मजबूर हो जाए। हमने देखा ऐसे बहुत सारे लोग, हैं, मैंने पूरा डेटा तैयार किया था, तो कहीं भी ऐसा डेस्टिनी का रूल नहीं था उनके जीवन में, बट दे आर डूइंग मार्वेलसली, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। क्योंकि समय आने पर यदि कोई बता दे कि ये तुम कर सकते हो, और उस वक्त वो एक बोल्ड स्टेप ले, जो हम चूक जाते हैं, उस वक्त बोल्ड स्टेप नहीं लेते, डरते हैं कि ये हुआ तो वो हुआ तो। लीजिए स्टेप, कोई कभी नहीं हारा। मैं तो सच बता रहा हूँ, कोई कभी हारते हुए मैंने देखा नहीं, जिसने मेहनत की, स्टेप लिया और अपने प्रभु को याद करता चला, कभी नहीं हारते देखा मैंने उसे। वो लेट हो सकता है, लेकिन नेवर जैसी चीज नहीं होती उसके साथ। अब ठीक है, हम लोग उस एज में आ गए हैं कि अब वहां तो नहीं लौट सकते, अब क्या करें? तो जो हम तब करना चाहते थे, अब शुरू करें। उतना अच्छा नहीं कर सकते, धीरे धीरे अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाएंगे, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बेटर होते चले जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 20 सालों में आपने सीखी होंगी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहां आप पिछले 20 सालों में गए होंगे, जहां पहले नहीं गए थे। इसका मतलब कि जो 20 साल पहले आप करना चाहते थे, वो अब भी कर सकते हैं। और यही मैं कह रहा था, श्री कृष्ण इसी को योग कहते हैं कि कर्म इतनी कुशलता पूर्वक किया जाए कि प्रभु से जुड़ जाओ, तो समय बदल जाता है। आप मेरे वर्ड्स लीजिए और करके देखिए, एंड आई एश्योर यू टाइम विल चेंज। Any other question? So my question is कि to be successful, sir, we should have a very good morning routine to connect to yourself, to universe. मुझे आपका morning routine समझना है sir. How you start your day? जैसे we read books, it is 20-20-20 rule. Different are they? आप कैसे दिन start करते हैं? Actually, right from my childhood, I was in good hands and with the bad destiny. So I had to work, and since I was in good hands, so they made me to work nicely. This is the difference. So early to bed, early to rise, ये मैंने बनाने की सोची, लेकिन हमेशा क्या हुआ, I always went late to the bed and got up early in the morning. और मुझे आदत पड़ गई 17, 18, 19 घंटे तक काम करने की, और उस काम का ऐसा जुनून मैंने अपने अंदर, मुझे all because of my guru, वो मुझे मिला कि मैं थोड़ा वो मुझे उनके माध्यम से एक ऐसी इंस्पिरेशन मिली, ऐसी डांट देंगे तो क्या होगा, नाराज हो गए तो क्या होगा, बाकी दुनिया की नाराजगी में सहन कर सकता हूँ, वहाँ नहीं।
तो ऐसा सिस्टम बनता गया, तो आई वर्क मोर एंड मोर, वो जुनून की तरह से मैं खाना भी भूल जाता था, एट टाइम्स तो बच्चों मैं नहाना भी भूल जाता था। क्यों? टाइम वेस्ट होगा, आज मैं लेट उठा 15 मिनट, so why to waste 15 minutes in bathroom? Now I hardly take 7 to 8 minutes in the bathroom. तो इस तरीके से मैंने काम किया, जो भी टारगेट था मैंने लिया, या जो टारगेट मुझे दिया गया वो मैंने अच्छे से करने की कोशिश की। हालांकि अभी और करने की इच्छा है, देखिए गुरु महाराज क्या करते हैं। जुनून बहुत जरूरी है काम के, और ये किसी भी एज से शुरू किया जा सकता है। ऐसा कोई वक्त नहीं है ह्यूमन लाइफ से जहाँ हम फाइनली कह सके कि ये गुजर गया, टिल वी आर अलाइव। तो अगर कुछ करना है आज से, yes ma'am. Sir, I think you have lived enough of your life and you have more experience than all of us here, I guess. So, what is one advice you would like to give to all the young leaders present here? Wonderful, wonderful. I think I must clap for you for those wonderful questions. One thing, set your goals. Number 2, try to achieve your goals like mad person. Come what may, I have to achieve it. And the third, yet you have to be smart, without any tensions. These are the 3 very fundamental things, very basic things, which will boost your confidence, and you will definitely do good in your life, yet be smiling as you are. So these are the 3 fundamental things that will make you a good leader. One more thing I would like to say, that a good leader leads from the front. So always take opportunities as well as challenges. Never leave them. Never run away from the challenges. Take the challenges and keep laughing, keep talking to each and every person, and you will be the leader. So first 2 things will give you the success, and third and fourth thing will give you a wonderful and confident life. And when I'm talking to you, it's a very candid talking. Means I'm not talking about some principles. I'm talking what I have seen or I faced myself. Anyone else? बच्चों के तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई दिन लगा देते हैं पूछते पूछते। Good afternoon, sir. Sir, मुझे जानना है कि confusion का solution क्या है? Take one step. This is a wonderful question. Wonderful question, because it happens with everybody and nobody accepts it. Take one step. Go ahead. और जब चलो तो ये सोच के चलना कि लुढ़केंगे, लेकिन काम करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। धीरे धीरे आपके डिसीजंस ठीक होने लगेंगे। नहीं तो should do, not I should not do, I should do, I should not do, and you will trouble your teachers, your peer group, means friends, your parents,
They'll give you the solution 1 or 2 days after. You'll again go to them. This is happening. And so, how to take failures in a good way? Failures teach you. Success doesn't. I am able to teach you better because I am a failed person in my life. See, स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था कि अगर आप जीत गए तो गोल अचीव हो गया और नहीं जीते तो एक्सपीरियंस अचीव हो गया। ऐसे लोग फेलियर हो गया अब ठीक है, क्या कर सकते हैं, फिर से काम करेंगे, फिर से काम करेंगे और काम करेंगे और एक दिन आएगा, and I assure you that it does come when you will start taking the appropriate decisions. Indecisiveness is very harmful. It gives you depression, and one is never successful in any part of the life, family life or professional life. So you have to shun indecisiveness and you have to take bold decisions, whether you get success or failure. Gradually, ये भी practice है ना, gradually your decisions will be all right and you will start taking, rather you will start guiding the people. तो आप इसकी चिंता मत करो। स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी बातें आपको नहीं पता होंगी, आपने सिर्फ फोटो देखे होंगे। उन्हें स्कूल में भी जॉब नहीं मिली थी। He was qualified, very smart person. लेकिन उनको स्कूल तक में जॉब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनको वो जॉब मिलनी थी जिसमें वो पूरी दुनिया में छा जाते थे और वो छा गए। पूरी दुनिया में उनकी स्टैचूज मिलती हैं, उनके डिसाइपल्स मिलते हैं पूरी दुनिया में। And they are not just Indians, they are Russians, they are Turkeys, they are Japanese, Sri Lankans, Americans, British, Irish people. तो वहाँ छाना होगा, इसीलिए एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर छोटी छोटी सफलताएं मिल रही हैं, इसका मतलब किसी टाइम आके आप रुक जाओ। बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि यहाँ उनको जॉब मिल रही है जो 18-20 साल में, and they are going to pay us nicely, they will stop, इसके चक्कर में मत पड़ना, प्रिपेयर। और उसके बाद हो सकता है इससे कम पैसा मिले, लेकिन तुम्हारी प्रिपेयर्डनेस तुमको इससे भी ज्यादा पॉपुलैरिटी और इससे भी ज्यादा पैसा दिलवाएगी। तो छोटी सी चीज में मत उलझना कभी। Dream hard and work hard. बस confusion खत्म। What's your name, my child? Sir, Virat. Virat. Yes. Sir, so as you said that you had many students who became, who were trying to give the exam of UPSC, but they could not but they did not have the confidence to do the exam. So, for them to continue, what was the motivation that you gave them? I always give target, no motivation. What I have given you today, अगर इसको बहुत ध्यान से सोचोगे, I have not given you the motivation, I have given you the target. So the target I used to give them, that you have to get success. There is no secondary, there is no
plan B, just plan A, and that is to clear your UPSC. Nothing else. और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो सारी चीजें करने के लिए कोई दुनिया के दरवाजे बंद थोड़ी होते हैं. So this was the target I always used to give to my students. Always. ये कीजिए. And I do not give them much time. The moment one has lot of time to think, he will be doing this. As she said, confusion. So I never give time. This is the target, and you have to do it. That's all. Sir, so what was the routine? Routine? Yes. Yeah. See, one must get up in the morning before the sun gets up. Then some physical exercises. Then after taking your bath, do pray. Pray to the God. And after that, go to school. When you come back from the school, don't feel that you are tired. Tiredness is here. Don't feel you are tired. Again, keep working. Then do play some game in the evening. And then again, you study after the dinner. Take dinner as early as possible, near about 7:30. That's all. Don't take late night dinners. So, this is the routine, and rest the time give to your studies and for your own development. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we have one last question from the audience. Pranam. How to overcome fear? I give you my example. मुझे ऊंचा चढ़ने में बड़ा डर लगता था. तो एक दिन मैं छत पे गया. ये जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही है. मैं छत पे गया, ऐसे करके देखा, फिर ऐसे करके देखा, मेरे बड़ा नीचे रेत थी. किसी का घर बन रहा था वो रेत. मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा. जय श्री राम करके कूद पड़ा. बस उस दिन से डर निकलना शुरू हुआ. आज तक नहीं डरता. अभी भी मेरा वजन थोड़ा अभी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मुझसे कोई कहे तुमको पैराग्लाइडिंग करनी है तो मैं कहूँगा ये चलो चलते हैं. तो ऐसे डर ऐसे ही निकलता है. डर को सोचने से नहीं निकलता, कभी नहीं निकलेगा. कुछ लोग दवाइयाँ खाते हैं, तो दवाई तो सेडेटिव होते हैं, वो आपको सोचने समझने की ताकत आपसे छीनने लगते हैं. आप वो काम कर जाते हैं, लेकिन उससे बड़ा नुकसान होता है. तो जिस चीज से डर लगता हो और उसी चीज के पास भागे. मेरे पास एक और कहानी. स्वामी विवेकानंद जी एक जगह जा रहे थे, बंदर पीछे पड़ गया. वो आगे आगे, बंदर पीछे पीछे, वो आगे आगे, बंदर पीछे पीछे. तो वहां पर एक संत महाराज बैठे. ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने स्वामी जी को भागते हुए देखा और बोले बंदर से डर गए. स्वामी जी found or imagined that as if his Guru Maharaj, his Guru has spoken something. He stopped, मुड़े, बंदर की तरफ देखा और बंदर के पीछे भागा. अब सीन क्या था? बंदर आगे आगे, स्वामी जी पीछे पीछे. डर ऐसे ही निकलता है. हर एक व्यक्ति को जिंदगी में किसी न किसी बात का फोबिया या डर जरूर होता है. सबको होता है. लेकिन उसी डर के पीछे पड़ जाइए तो वो छोड़ के भाग जाए. करके देखिएगा.
So, I want to ask one question to you. Yes. सर हमने अगर टारगेट चूज किया है, हमने उस टारगेट पर काम करना अप्लाई भी कर दिया, बट फिर भी उसे कंप्लीट करना है लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तो क्या करें हम? समय दो उसको, have patience. अभी क्या है ना, जब हम लोग एक साइबरनेटिक सोसाइटी के मेंबर हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी एंटर बटन से चलने लगती है. कंप्यूटर में होता है ना, डेटा फीड के एंटर मारा, रिजल्ट आ गया. जिंदगी लेकिन वैसे नहीं है. तो गिव मोर टाइम एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स. रिजल्ट तो आएंगे, देर से आएंगे लेकिन जरूर आएंगे. पक्की बात. Thank you, sir. With that, we come to the end of the session. Guruji, you have been truly inspiring. I and everyone here will walk back with some learning for our lives to look at. Thank you so much, Guruji. Thank you so much. Before we end the session, I want to thank the Heritage Partner for OCLF, the 6th edition, the Life Insurance Corporation of India. I want to thank all the audience for being here and giving us the support. Thank you so much. We look forward to seeing you in the next session. Thank you so much.